Hey everyone, Namaskar, Sat Sri Akal, Radhe Radhe. This is Surya Yadav from Fluent Spoken Classes. Now you have understood about me. I'm an English trainer and I always want to do my job for my students. I do not want to do anything else only for teaching because except English, I do not want to know any words. Except English, I do not want to listen any subjects. Except English, I cannot do anything else. Like I feel this type. But this is not any matter to speak in front of you. As you have understood about me, I'm an English trainer. That is why we are speaking this time. But I respect to all my subject, whether it is English, Hindi, geography, math, physics, chemistry, or any subject I like because I'm also a teacher and I know value of subject. And one thing is very clear that what is going on here, it is not for me, for myself, it is for my student self. Just you should understand, I have taught all 10th English series. 10th, all poems and poetry, prose, and short story are supplementary. You can go there and you can read properly. I have taught everything else very easily, very clearly, very properly. You want to know why I taught? Because I know I will teach only 10th and 12th English. I will teach only 10th and 12th English because board exam is very near and they can understand, people can feel what is going on here. That is what we are going to teach this 10th and 12th English. If you don't know about this, so you should visit on my playlist and you can check 10th English. You will get everything else. If you are in class 10th, then if you are in class 12th and you want to know about My Mother at 66, so I'm going to teach you first poem of My Mother at 66. My mother at My mother at 66. अब here you can feel it has been written by Kamala Das. Kamala Das. अब ये 66 यही है. अब यू कैन फील हियर, मैं तो वैसे अब हिंदी में आऊंगा क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना होगा. यदि आपको ज्वाइनिंग करना हो तो यू कैन ज्वाइन और सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज की वी आर डूइंग जॉब फॉर इंग्लिश all chapter, whether you're class 9, 10th, 11th, 12th, BA, MA, BSc, sorry, BA, MA, MAd, B.Ed, PhD, you want to clear your JRF net, so you can subscribe our channel because we are also part of JRF net. We have crack our net and JRF also, and we are doing PhD from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapit, so that we can speak in front of you. Everything is going on very good. You want to know about My Mother 66, so here poets wants to say about one word. You can understand. We have a clip of flamingo. You can look. It is a flamingo book, and that is chapter of class 12th. And we want to teach you because you know one thing very well कि whatever I will teach, everything will be understood by you. Because मैं एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझ में भी आएगा. ध्यान सुनिएगा कि कौन चीज कैसे होगा, कौन चीज कैसे नहीं होगा. और पोएट क्या कहना चाहता है अपने माध्यम से. 66, तो मैं कुछ बता दूं पहले ही. 66 एक ऐसी उम्र होती है जहां पे एवरेज इंसान का बॉडी काम करना बंद कर देता है. इंसान अपने बॉडी से काम नहीं कर पाता है. उसको ये बात समझ में नहीं आती है कि जो कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है. उसको ये अनुभव हो जाता है कि अब उसका तिरही अनिवार्य है. तिरही मतलब तिरही मतलब मृत्यु. मतलब हमारे हिंदू धर्म में अगर आप जानते होंगे तो वहां पे किसी के मरने पे 13 दिन बाद उनका दाह संस्कार के लिए तिरही किया जाता है. तो हमारे यहाँ तिरही का मतलब मृत्यु होता है. अगर आपका तिरही हो गया तो मतलब आपकी मृत्यु हो चुकी है. तो कहने का मतलब है कि 66 साल कोई हो जाता है तो उसको पता हो जाता है कि अब वो बैकुंठवासी होने वाला है, उसको यहाँ से जाना है. तो एक बेटी थी जिसका नाम था कमला दास. वो अपने घर पे आती है, मायके आती है शादी से बाद. तो वो कहाँ रहती है, विदेश में रहती है. तो उसका आना जाना केरल से था. केरल में एक जगह कोचीन, वहां से जाएगी. जब कार से जाती रहेगी तो अपनी माँ को देखिए, उसकी माँ का जो चेहरा था पीला पड़ जाएगा. वो बहुत क्रॉप्स दिखेगा, इससे उसकी माँ मर चुकी है, ऐसी सोती है, मुंह आके सोती है. तो उसकी माँ को लगता है ना कि माँ वृद्ध हो चुकी है और अपने मायके ससुराल जा रही थी. तो उसको डर है बेटी को, जब मैं लौट के आऊंगी क्या पता मेरी माँ मेरे साथ रहेगी कि नहीं रहेगी. इसी बात को, अपने फीलिंग को शेयर कीजिएगा. पूछे माई मदर का थीम क्या था, बोल सकते हो. इसमें फियर है, सैड है, हेजिटेशन है और एक डिसअपॉइंटमेंट है अपने को खोने का. एक लव भी है, लेकिन वो लव कौन सा है उसको बोल सकते हो ग्रीफ है एक लव का. इसमें इलेजी जैसे चीजों को यूज किया जाएगा अपने माँ के प्रति. आइए, बहुत छोटा सा पोम तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा सा पोम है. स्टार्ट करते हैं. डेफिनेटली आपको बहुत प्यारा लगेगा और अगर लगे तो आगे जो होगा अच्छा ही होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. ध्यान सुनिएगा. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे. अब यहाँ बातें हो रही हैं कि ये बुधवार की बात है.
लास्ट फ्राइडे मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए कोचिंग की तरफ जा रही थी। अब कोचिंग मतलब क्या होता है, तो केरल में जाएंगे तो एक पोर्ट है जहाँ पे कोचिंग है, वहां पे लोग आना जाना शुरू करते हैं, एयरपोर्ट भी है। तो कोचिंग वाली एक सिटी है, इस सिटी से मुंबई नहीं होता है, मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज, दिस टाइप इट इज सिटी ऑफ तमिलनाडु, सॉरी केरला, केरल की कोचिंग। आई सा माई मदर बिसाइड मी। अब कहने का मतलब है, अब वो कार से चल रही है, तो कार है तो वहां पे 2 सीट है, एक सीट वो बाइक राइड कर, कार ड्राइव कर रही है, तो एक बगल उसकी क्या है, उसकी माँ सोई हुई है। तो अपनी माँ को पलट के ऐसे देखती है। कौन देखती है? कमला दास, जो हमारी पोएट्स है, वो देखती है। आई सा माई मदर बिसाइड मी, जो बगल में बैठी है। डोज ओपन, डोज ओपन मतलब उनका मुंह खुला हुआ है, डोज ओपन, माउथेड, हर फेस असीन लाइक दैट ऑफ क्रॉप्स, और उनके उनके मुंह से खुले हुए हैं और उस निद्रा में है। उनका फेस ऐसा लग रहा था जैसे वो क्या हो चुकी हैं, क्रॉप्स हो चुकी हैं। इसका मतलब वो मुर्दा हो चुकी है, उनके अंदर कोई भी जानवर नहीं है, वो मित्र आत्मा हो चुकी है, उनके पास किसी चीज का समझ नहीं है। एक कौन कहता है? बेटी बोलती है। एंड रियलाइज विथ पेन, और जब मैं सोची तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ा दर्द आया। आप 2 मिनट फील करो कि अभी आपकी मम्मी आपके साथ नहीं है, आपकी मम्मी दुनिया से बस चली गई है। अब वो कैसा दर्द हो रहा होगा, महसूस करिए। 2 मिनट आंख मूंद के और देखिए, तो जो दर्द होगा वो एक बेटा और बेटी समझ सकते हैं, आम इंसान नहीं समझ सकता है, लेकिन एक बेटा और बेटी समझ सकते हैं कि माँ का दर्द बेटे और बेटी में क्या होता है। तो बेटी ने वो पेन महसूस किया। पेन मींस क्या होता है? दर्द। पेन मींस क्या होता है? तो जो दर्द हुआ वो बेटी ने महसूस किया अपनी माँ को देखते हुए। दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्स, वो इतनी वृद्ध हो चुकी हैं जितनी वो दिख रही हैं। बट सून पुट दी थॉट अवे, लेकिन उसने क्या किया, अपने थॉट को पुट अवे कर दिया, मतलब वहां दूर कर दिया, क्योंकि डर रही थी इस बातों को सोचने। कोई बात आप सोच रहे हो, नोटिस करो आप, लेकिन वो बात आपको दुख दे रहा हो, तो अपने माइंड को आप वहां से डाइवर्ट कर कहीं और ले जाते हो, क्योंकि वो बात आपको बार बार क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है, और आपसे बात सही नहीं जाती है, तो आप वहां से डाइवर्ट हो जाते हो। सुन, आगे बोलता है एंड लुक्ड आउट एट दी यंग ट्रीज। अब यहाँ कहने का मतलब है, जो कार में बैठी थी तो अपनी माँ को जब देखा उसको दुख होने लगा, उसने क्या किया, बाहर देखने लगा। जब बाहर देखना शुरू की पोएट्स, उसको क्या देखा, पहले ट्री दिखा। क्या दिखा? ट्री। कुछ पेड़ दिखते हैं, कुछ जो स्प्रिंटिंग कर रहे थे। स्प्रिंटिंग मतलब क्या होता है? लहराते रहते हैं। अब आप जानते हो कार चल रहा है, तो कार में जब कार तेजी से जाएगा तो कुछ हर चीज दौड़ता हुआ दिखेगा। जैसे कार में बैठ जाओ, लगेगा कि पेड़ ही दौड़ रहे हैं, पेड़ नहीं कार दौड़ रहा है, लेकिन आपको क्या लगेगा, पेड़ ही दौड़ रहे हैं। दी मेनी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो बहुत बच्चे थे स्पिलिंग कर रहे थे, ऐसे ऐसे जो नहीं टायर पैर में पेट में डाल के घूमने वाला हाल, घूमने वाला हाल, वो वाला, तो स्पिलिंग कर रहे थे बच्चे एक लाइन से, पूरा स्पिलिंग कर रहे थे आउट ऑफ देयर होम। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेयर्स, लेकिन फिर वो इतना करते हैं, वो कहाँ पहुंच गई, एयरपोर्ट पहुंच गई, जहां पे जहाज क्या होते हैं, उड़ान भरते हैं, और वो जहाज के पास पहुंच गई। वहां पे कुछ कौन लगे हुए थे, सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे। वहां पे उसका सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा था, चेकअप कर रहा था। तो वहां पे चेकअप हुई, जब चेकअप हो रहा था तो अकेली जब मम्मी जा नहीं रही थी, स्टैंडिंग फ्यू यार्ड स्टैंडिंग फ्यू वर्ड अवे, मेरी मम्मी मुझसे कुछ कदमें क्या थी, दूर थी। जैसे मम्मी यहाँ पे खड़ी हुई है और मैं यहाँ पे हूँ, तो मैंने जब अपने माता जी को मुड़ के देखा, आई लुक अगेन एट हर वन पेल, जब मैंने उसका वन पेल देखा, मतलब हिंदी में कलरलेस, जिसका मतलब पूरा जो चेहरा, अभी मेरा चेहरा चमक रहा है ना, जब 80 साल का हो जाऊंगा मेरा जो चेहरा होगा धुंधला हो जाएगा। अभी आप अपने चेहरे पास रखो तो आपका चेहरा टाइट दिख रहा होगा, अच्छे अच्छे गाल होंगे, तब टाइट मतलब यंग हूड दिखेगा आपको, प्यारा सब लगेगा। लेकिन जब 80 साल को जाओगे तो यही चमड़ी ना, तो आपको बहुत छोटी लगेगी, मतलब आपको बहुत घिन आएगा अपने ऊपर, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन तब आप सहना शुरू कर दोगे। तो वन मतलब क्या होता है, WAN, वन मतलब कलरलेस होता है। क्या होता है, जो यहाँ कलर ही नहीं था, पेन मतलब पीला होता है, उसका कलर पीला पड़ चुका था, चेहरे में कोई भी रौनक नहीं थी। एज लेट विंटर मून, ऐसा लग रहा था जैसे विंटर, जैसे ठंडी का चंद्रमा। आप जानते हो ठंड में कोहरा पड़ता है, अभी आप कोहरा में चंद्रमा दिखता ही नहीं है। वैसे मेरी मम्मी का चेहरा था, मुझे समझ में ही नहीं था मेरी मम्मी का चेहरा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, मुझे बहुत वृद्ध लग रही थी मम्मी, फैमिलियर एक, और ऐसा लग रहा था बहुत पुराना दर्द है जो मैंने पहले भी पाया हुआ है। माई चाइल्डहुड फियर, जैसे बचपना में आपको इसी चीज का डर हो, जैसे आप कक्षा 12 में हो, कोई कह दिया 12 फेल हो जाओगे, तो फेल होने का डर आप फील करो कैसा लगता है। वैसे ही जो बचपना का फील था, कमला दास को अपने जवानी में फील कर रही थी, कितना दर्द भरा दिन है। बट ऑल आई सैड वॉज, मैंने सब कुछ कह दिया है था, सी यू सून अम्मा, मैंने ये बात मम्मा से कह दिया कि सी यू सून अम्मा। अम्मा मतलब माँ, माँ मतलब मदर। उसने बोला कि अम्मा, केरल में लोग मम्मी को अम्मा बुलाते हैं, यहाँ पे मम्मी बुलाते हैं, कहीं कहीं आई बुलाते हैं, कहीं कहीं बहुत नामों से बुलाया जाता है मम्मी को।
ठीक है, तो बोला सी यू अम्मा, कभी और मिलेंगे अम्मा। और एक लाइन बोलती हैं, आई डिड वॉज स्माइल, मैंने कुछ प्यारा सा स्माइल किया, एंड स्माइल, एंड स्माइल, मैंने स्माइल किया, स्माइल किया, स्माइल किया, मैंने 3 स्माइल किया। पहला स्माइल, दूसरा स्माइल एंड तीसरा स्माइल। ये तीनों स्माइल का अलग अलग महत्व है। पहला स्माइल है कि उसको क्या कर रहे हैं, उसको एक आश्वासन दे रहे हैं कि मैं श्योर हूं, मतलब मैं आप में बिलीव करती हूं कि मैं एक दिन जरूर आपसे मिलूंगी, मुझे क्या है, ट्रस्ट है, क्या है, ट्रस्ट है। दूसरा पॉइंट क्या है, डिसअपॉइंटमेंट है, मतलब ये डर है, ये फियर है कि आज के बाद मम्मी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और तीसरा अपॉइंटमेंट है, एक होप है, चलिए ठीक है, देखते हैं, जो होगा वही होगा, जैसे हुई है वही जो राम रची राखा। बस यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर देख लीजिए, जरूर आएगा। और मुझे आप विदा करिए। थैंक यू सो मच। आई विल गो फ्रॉम हियर एंड आई विल मीट यू अनदर डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एक बार देख लीजिए फिर बंद करता हूँ। ओके, थैंक यू, मैं बंद कर रहा हूँ।